Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noeen. Today, once again, I am over here to teach you science. Oxford International School GH Campus, International Primary Science 5. In first term syllabus, we have 3 chapters to cover, and chapter number 1 was keeping healthy. It's done. Exercises are done. Everything is completed. Chapter number 2, guesses all around. Alhamdulillah, it's also done, completed. Chapter number 3. Today we are going to start chapter number 3, changing states of matter. In this chapter, we are going to study changes of matter states when water lose heat, freezing, condensation, when water gains heat, melting point, boiling point, and evaporation. Inshallah, today's unit or today's class, inshallah, we will cover it. Okay. Chapter number 3, changing states of matter. First of all, you should know that matter has 3 states: solid, liquid, and gas. I think in first chapter, I explained about the states of matter: solid, liquid, gas, or maybe in grade 4. Grade 4 में आपको solid, liquid, gas 3 states of matter के बारे में टीचर ने explain किया हुआ है. Yes, वेव करके बताइए. Yes. Yes. मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं: सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर, एंड गैस एवापोरेशन. You can see in the picture changing states of matters. It's solid form, then liquid, it's gases. Evaporate होके आबी बुखारात बन के जब उड़ जाता है, then it's a form of gases. Is that clear? The concept of the chapter is clear. Now we are going to study about the changes states of matter. वो change कैसे होता है? In which states? Water can exist in 3 different states: solids, liquid, gas. In solid states, it exists as ice or snow. आपने ice देखी है अपने फ्रिज में? Snow देखी है जब मरीज जाते हैं, snow falling होती है, ice. It's a form of solid. ये क्या है? ये matter की solid state है. In a state of solid. Kana, look at me, beta. In the liquid state, it exists as a liquid water. You can see the water. Water को देखा है glass में? Jug of water, glass of water. It's a second state of matter, that is liquid. In a liquid form, you can see the water easily. In gas, it exists as a water vapor or stream. Water vapor बन के जब ये उड़ जाता है और जब boil करते हैं आपको stream बनता है. You can see in the picture, it's boiling state. It's boiling state. When you boil the water, its temperature raises up and goes 100 degrees centigrade. And when you are going to freeze it, when it's a form of solid, its temperature come on 0 degree centigrade. जब आप वाटर को बॉईल करते हैं तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है, और जब आप इसे फ्रीज करते हैं, ये ठंडा होता है, कोल्ड होता है, then its temperature come on 0 degree centigrade. And in a liquid form, it's normal. In a liquid form, it's normal. Is that clear? वेव करके बताइए, is that clear? Good. Now, who is with us? You have to put off your mics, beta. Instructions for everyone. Follow the instructions. Changes of state. Changes of state हम बात करने जा रहे हैं states की, matters की, कि ये किस तरह से change होता है. How it's change its shapes. Right? In the photograph, the iceberg is water in the solid state. Let's close. किसका mic on है?
सवेरा, जी माइक ऑफ रखिए बेटा। In the photograph, the iceberg is water in the solid state. It floats on the liquid. The air that surrounds the iceberg contains water vapor. Water vapor in water is water in the gaseous state. Water vapor cannot be seen as it colorless. जी, ये हमें बता रहे हैं, you can see in the picture, observe the picture. You can see the picture. आइसबर्ग सॉलिड फॉर्म में है। आइसबर्ग कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आइसबर्ग किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। ये आइसबर्ग वाटर पर फ्लोट कर रहा है, फ्लोट करता है। द आइसबर्ग कैन फ्लोट ऑन द वाटर. You can see in the picture and you can see also on the Discovery Channel. You can also see on the English movies. You can see in the northern side also. अगर आप वहाँ जाए तो वहाँ पे भी जो थोड़ी बहुत आइस बर्ग बनती है सीज में, समंदरों में, तो यू कैन सी दैट इट फ्लोट ऑन द वाटर. वो वाटर पर फ्लोट करती है, बहती है. आइसबर्ग के राउंड पर एक हवा का घेरा बना होता है जो पानी के एवोपरेशंस को, वाटर एवोपरेशंस के होते हैं. वो क्या होते हैं? वाटर एवोपरेशन होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं. वो क्या चीज होती है? वाटर वेपर्स. यू कैन सी दीज, दे आर गोइंग टू चेंज द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. वाटर के वेपर्स गैस की हालत में, गैस की कंडीशन में पानी के ऊपर होते हैं. इन विच कंडीशन? इन अ गैस कंडीशन. समटाइम आपको लग रहा होता है ना बादल बादल बादल, सी साइड पे भी जाए बादल बादल. व्हाट इज दैट? वो एवोपरेशन का प्रोसेस होता है. जब पानी एवोपरेट होकर ऊपर उड़ रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है, गैसेस की फॉर्म में आता है. ये साले भी आ गए, सोले मोहम्मद भी. अच्छा जी, पानी के ये एवोपरेट्स जो होते हैं, वाटर एवोपरेट्स का रंग हम नहीं देख सकते बिकॉज वाटर इज कलरलेस. We can't see the water vapors in the air because the water is careless. In simply word, you can see the iceberg on a sea. समंदर में आप आइसबर्ग को देख सकते हैं, इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं. The iceberg is able to float on the water. वो वाटर पर फ्लोट कर रहा है, बह रहा है. इसके इर्द गिर्द जो ये एरिया आप देख रहे हैं, इट्स कन्वर्टेड इनटू गैसेस. ये एरिया कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में? इनटू गैसेस में. और these gases are going to change the position of the water vapor. आपने देखा समंदर पे जाए तो आपको बादल 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 से दिख रहे होते हैं. What is that? That is the process, that is the condition when water goes up and in the change of form of water vapor. Water vapor आबी बुखारात बनके वो क्या करता है? हवा में उड़ जाता है. That is the form of rain. At the some time of that कि जब वो बहुत ज्यादा उसकी क्वांटिटी हो जाती है, then they form in rain. अच्छा जी. Now see the next slide. You can see the iceberg in both pictures. It's also iceberg. It's also an iceberg. At the back side of this picture, you can see that आपको cloudy दिख रहा होगा. That is the time when water goes in a form of steam. Soleh, beta, switch off your mic. G. Now see the next slide. When water lose heat, जब water गर्मी की वजह से, हीट की वजह से लूज होना शुरू होता है, मतलब ये कि उसकी डेफिशिएंसी या इंक्रीज होना शुरू होता है. दो चीजें होती हैं. इंक्रीज, जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है? जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है? फ्रीजिंग. Freezing is the point when the temperature of the water is 0 degrees centigrade. When the temperature of water is 0 degrees centigrade, it's a form of freezing. वो कौन सी फॉर्म है स्ट्रेट की, मैटर की? फ्रीजिंग. जब पानी फ्रीज हो जाता है. Already seen in the picture of iceberg.
आइसबर्ग वो भी वही चीज है कि वाटर फ्रीज हो गया। वेयर डू यू यूजुअली फाइंड आइस एंड स्नो? इन हॉट एंड कोल्ड प्लेसेस। जी, यूजुअली आप कहाँ देखते हैं आइस को हॉट एंड कोल्ड प्लेसेस पे? डेफिनेटली जहाँ टेम्परेचर हाई होगा, ज्यादा होगा, गर्मी की शिद्दत ज्यादा होगी, वहां क्या होगा? आइस नहीं होगी। In that area which are very far from the radius of the earth, जो अर्थ के रेडियस से दूर जगह हैं, जहां पे टेम्परेचर लो होगा, कम होगा, you can find or you can see the ice or snow falling on that places. Why we went मरी? हम हरी क्यों जाते होते थे जब छोटे होते थे, अभी भी जाते हैं जब हमें कहीं घूमना जाना होता है? Why we prefer मरी? हम मरी को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि वो रेडियस से ऊंचाई पर है, पहाड़ों की तरफ है, पहाड़ों पर है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा और वहां पे फ्रीजिंग के चांसेस, ठंड के चांसेस, ठंडक ज्यादा होती है। ऑन द अर्थ इज अ गैसेस, हॉट गैसेस, जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गर्म वाले मवाद हैं, इसकी वजह से यहाँ बहुत गर्मी है। तो वो जगह जो कि दूर है रेडियस से, वहां आप स्नोफॉलिंग देख लेते हैं, जहां ग्रीनरी है। सी द डिफरेंस बिटवीन कैंट एरियाज एंड लोकल एरियाज ऑफ द कराची। कैंट एरिया में ग्रीनरी ज्यादा है, वहां मौसम अच्छा रहता है, एवपोरेशन अच्छी होती है, वहां बारिश जब हो रही होती है तो बनस्बत ज्यादा होती है बाकी शहर के। क्यों? इन्हीं वजूहात से ना कि वहां पे एवोपरेशन का प्रोसेस जो है वो ज्यादा हो रहा होता है। How can you change water in liquid state to water in the solid state, ice? ये हमें कह रहे हैं how can we change water in the liquid state? हम water को liquid state में और फिर solid state में, ice state में कैसे change कर सकते हैं? When heat a form of energy, it's added. The ice melts into liquid water. It has reaches the melting point 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की है, सिंपल सी चीज है। आप एक बाउल लीजिए, उसमें पानी डालिए, उस बाउल को अपने फ्रीजर में रख दीजिए। जिस फॉर्म में आपने वाटर को बाउल में डाला वो कौन सा स्टेट था? लिक्विड। नाउ यू आर गोइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड को आप चेंज करने जा रहे हैं सॉलिड पे। अब आप उस वाटर को जो एक आपने बाउल में लिया उसे फ्रीजर में रख दीजिए। 5-6 आवर्स के बाद उसे जब आप देखेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, वो एक बर्फ का कटोरा बन चुका होगा, डला बन चुका होगा। अब उसको आपने कौन सी फॉर्म में लाना है? दोबारा से लिक्विड में। उसे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, टेबल पे रख दीजिए। यू कैन सी कि वो लिक्विड फॉर्म में दोबारा आ गया है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे, जिस बाउल में आपने वाटर को, आइस को रखा था, अब वहां पर आपको पानी के ड्रॉप्स दिख रहे होंगे। दिखते हैं? टेबल गंदा हो जाता है, गंदा तो नहीं होता लेकिन टेबल पे भी पानी आ जाता है। बाउल जब रखा था उस वक्त तो बिल्कुल ड्राई था, अब क्यों उस पे पानी के ड्रॉप्स हैं? अच्छा, ये भी मैं अभी समझाऊंगी। इससे पहले अब थर्ड स्टेट पर आ जाते हैं। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि मिस ये बता रही थी ये मेल्ट हो जाता है, ये उड़ जाता है, ये एवोपरेट हो जाता है, ये कैसे होता है? आइस बन गया, लिक्विड बन गया, अब उसे गैस बनाना है। अब जब आप अपनी मम्मा को कहेंगे कि इस वाटर को बॉईल करना है, तो आप देखेंगे 15 to 20 मिनट्स में वो बॉईल हो के वाटर स्ट्रीम बनकर एवोपोरेट होता जाएगा, उड़ता जाएगा, और थोड़ी ही देर के बाद जो आपका बाउल है वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा। ना उसमें सॉलिड फॉर्म में होगा, ना लिक्विड फॉर्म में होगा, ना गैस फॉर्म में होगा। ये है 3 स्टेट ऑफ मैटर्स। हम खुद इजीली इनको सर्च कर सकते हैं, इन्हें स्टडी कर सकते हैं, इन्हें एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इट्स अ वेरी लवली टॉपिक। इसे पढ़ने में, इसे पढ़ाने में, इसके एक्सपेरिमेंट करने में आई ऑलवेज एंजॉय, मैं हमेशा एंजॉय करती हूँ। एंड इंशाल्लाह व्हेन वी विल बी जॉइन द स्कूल, जब हम स्कूल ज्वाइन करेंगे देन वी डू द एक्सपेरिमेंट, हम इन एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे एंड इंशाल्लाह यू विल एंजॉय। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज है,
0 degree continue to apply heat and the water will turn into water vapor. Water change होता जाएगा water vapor में, मैंने आपको बता दिया. Which is water, it is gaseous state. ये कौन सी state है? Gases. बताया ना मैंने, gases बनकर उड़ जाएगा. If heat is removed from the water vapor, the gas cools down and it condenses back to the liquid water. अगर हम अब आधे में चूल्हे को बंद कर देते हैं, सिंपली समझें, या उससे पानी को रख देते हैं, तो मैंने आपको बताया ना टेबल के ऊपर और बाउल के ऊपर जो ड्रॉपलेट्स देखेंगे वो है कंडेंस. अभी इसकी डेफिनेशन और इसको मैं डिटेल में पढ़ाती हूँ. When a liquid change into a solid, we say that it freezes. जब solid change होता है liquid में, sorry, when a liquid change into a solid, जब liquid change हो रहा है solid में, तो हम क्या कहेंगे? It's freezing. ये freeze हो गया. फ्रिज से बर्फ निकालिए, it's freezing. ये freezing point है 0 degree centigrade. Which degree? 0 degree centigrade. The temperature at which a liquid freezes is called its freezing point. It's the freezing point है. The freezing point of water is 0 degree centigrade. Which degree centigrade? 0 degree centigrade. In a form of solid, the freezing of liquid is a temperature 0 degree centigrade. उसका temperature क्या है? 0 degree centigrade. Different liquids have different freezing points. Different liquids के different freezing points है. कुछ का जो कंडेंसेंसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और कुछ की कम होती है. दैट इज वाई इनका थोड़ा सा डिफरेंस होता है. अभी मैं बताती हूँ कैसे. डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रीज एट डिफरेंट टेम्परेचर. डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो फ्रीज होते हैं बिकॉज द मॉलिक्यूल्स दैट मेक देम अप आर डिफरेंट. क्योंकि उनकी मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो. अब जब वाटर को बॉईल करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या बहुत तेजी से रनिंग करते हैं, बहुत यूं 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 आपस में यूं 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 रनिंग करते हैं और एवोपरेट होके गैस बन के उड़ जाते हैं. जब फ्रीजिंग कर रहे होते हैं तो क्या यूं अब आपस में वो मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट होना शुरू हो जाते हैं. कुछ में ये स्ट्रेंथ जो है मॉलिक्यूल्स में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि वो जल्दी से फ्रीज हो जाते हैं. आपने नोटिस किया होगा दो तरह के बाउल्स में आप पानी रखते हैं. एक एल्युमिनियम का होता है, एक प्लास्टिक का होता है. आप देखिएगा कि एल्युमिनियम वाले में जल्दी से बर्फ जम जाती है क्योंकि उसमें ज्यादा कंडेंस है फ्रीज होने का. उसमें जो वाटर होगा वो मॉलिक्यूल्स जल्दी से फ्रीज होने की आपस में जुड़ जाते हैं बनिस्बत प्लास्टिक बाउल के. Some kind of molecules have stronger forces holding molecules to each other than other kind of molecules. जी बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया. अच्छा, एक चीज और है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम फॉरेनहाइट में कहते हैं 32 डिग्री सेंटीग्रेड. 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है फॉरेनहाइट के टेम्परेचर में थर्मामीटर में से हम कहते हैं 32 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, यू कैन सी इन द थर्मामीटर. आप थर्मामीटर पे इसे आसानी से देख सकते हो. ये देखिए पिक्चर में देख रहे हो इस तरह से ये आइस जो है वो एवोपरेट हो रही है. सी, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. अब जब ये एवोपरेट हो रहा है, इसे हमने बाहर रखा तो ये कुछ ही घंटों में उड़ जाएगा, गैस बन जाता है. ठीक है, इजीली, राइट. नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड. कंडेंसेशन. कंडेंसेशन कहते हैं किसी चीज का बहुत थिक हो जाना, गाढ़ा हो जाना. ठीक है. कंडेंसेशन इज द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर बिकम्स लिक्विड. ये वो प्रोसेस है जब वाटर जो है वो बिकम अ लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. इट इज द रिवर्स ऑफ एवोपोरेशन. ये एवोपोरेशन का रिवर्स है. गाड़ी को रिवर्स गियर लगता है ना, तो ये एवोपोरेशन प्रोसेस का जिसमें वाटर जो है वो गैसेस बनके एवोपोरेट हो रहा है, ऊपर उड़ जाता है. अब ये उसका रिवर्स है. अब ये ऊपर नहीं जा रहा, रिवर्स, ये वापस आ रहा है.
Where liquid water becomes a vapor, condensation happens one of two ways. इसके दो तरीकों से होता है. Either the air is cooled, जब एयर ठंडी हो, जब environment में टेम्परेचर 12 डिग्री, 11 डिग्री, 7 डिग्री, 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बहुत कम पर आ रहा होता है. ठीक है. Either the air is cooled to its dew point or it becomes the saturated with water vapor that it cannot hold any more water dew point. जी, अब इसमें हो क्या रहा है? इसमें बिल्कुल सीधी सी बातें समझे. ये वो प्रोसेस है जहां पर वाटर लिक्विड हो जाता है. वाटर क्या चेंज हो जाता है? वाटर लिक्विड में चेंज हो जाता है. ये एवोपोरेट का रिवर्स है. एवोपोरेशन के प्रोसेस का रिवर्स बैक है, जहां वाटर वेपर जो है वो पानी बन जाते हैं. क्या बन जाता है? वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर. ये प्रोसेस दो तरीकों से होता है. इनमें से एक में पानी वाटर जो है अपनी जगह ठंडा हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, या फिर पानी के बाकी जो एवोपोरेशंस होते हैं, बुखारात होते हैं, इतने फ्रीज हो जाते हैं, इतना सब कुछ हो जाता है कि वो मजीद पानी को रोक नहीं सकते. दैट्स व्हाई दे शो द ऑन द ग्लास. कंडेंसेशन को आप, अच्छा इसके एक सीधी सी एग्जांपल मैं आपको ये बताती हूँ. ऐसे समझिए कि आपने सर्दियों में, ठंड में देखा होगा, सर्दियों में देखा होगा कि अक्सर आपकी खिड़कियों के ऊपर और ग्लास के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर जल्दी से आपको वाटर के ड्रॉप्स दिख रहे होते हैं, कंडेंसेशन दिख रहे होते हैं. उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ही होती है कि एनवायरनमेंट में जितने भी एवोपोरेट्स होते हैं वो चीज़ों पर, ग्लास पर, गाड़ी के ग्लास पर, विंडो ग्लास पर शो होना शुरू हो जाते हैं, दिखते हैं. उसी से तो पता चलता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेदर, हॉट एंड कोल्ड. हॉट में क्या होता है कि वो गैस बन के उड़ जाता है. कोल्ड में क्या होता है? यू कैन सी दैट, आप उसे देख सकते हैं. ये होती है कंडेंसेशन. दिस इज कंडेंसेशन. Have you noticed droplets of water on leaves early in the morning? अक्सर मॉर्निंग में आपने लीव्स के ऊपर ये पानी के ड्रॉप्स देखे, जिसे मोस्टली हम शबनम कहते हैं कि ये देखिए शबनम पड़ी हुई है पानी के वो पौधों पर, पत्तों पर. बहुत ही खूबसूरत लगती है. इट्स रियली ब्यूटीफुल. These droplets of water are dew drops. इन्हें क्या कहते हैं? Dew drops. Where do the dew drops come from? अब बात ये कि dew drops आए कहाँ से? See on the picture, ये dew drops है ना, ये कहाँ से आए? अभी मैं बताती हूँ. Dew is a natural form of water. Dew water की एक natural form है, because हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि हवा में, एनवायरनमेंट में हर वक्त वाटर वेपर्स मौजूद हैं. आई एम सिटिंग इन द लाउंज, आई एम सिटिंग इन द लॉबी, स्कूल लॉबी, बट इंस्टेड ऑफ इट यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स हैं, वाटर है, इन अ फॉर्म ऑफ गैसेस. गैसेस की फॉर्म में है जो कि मैं देख नहीं सकती, बट वेदर चेंज होगा, आई कैन सी ऑन दिस ग्लास. मैं अपना पानी के ग्लास पे रखूंगी तो वो थोड़ी देर बाद उसमें कंडेंसेशन मुझे दिख जाएगी. बट ये याद रखिएगा, इसके लिए हमें ठंड या एनवायरनमेंट ठंडा अच्छा जरूरी होता है. ऐसे नहीं कि नॉर्मल, जितने कराची की ठंड में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर आप मरी कोटा जाएं तो वहां यू कैन सी इट इजी. जी, formed as a water vapor condenses dew like the glittering drops on the leaf form. अच्छा, सिर्फ इतनी सी बात समझिए कि पानी दुनिया में 1/3 ऑफ द अर्थ वाटर है. जमीन के 3/3 हिस्सों पर पानी है, और एक हिस्सा जो है, इफ वी डिवाइड
द अर्थ इन 4 पार्ट, तो 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स पर वाटर है और 1 पार्ट्स पे प्लांट्स, एनिमल्स, यू एंड मी है। ठीक है, तो एवोपोरेशन का प्रोसेस हर वक्त रहता है, हर वक्त। कोल्ड प्लेसेस में एवोपोरेशन जो है यू कैन सी इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, और वैसे नॉर्मली आप लीव्स पे ये जो ड्यू ड्रॉप्स हैं इजीली देख सकते हैं। इट्स ऑल्सो शो दैट every time, हर time water in the process of evaporation, or that form of evaporation you can see in condensation or you can see on the leaves पे भी वही water आपको नजर आता है, आप देखते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं ये लीव्स के ऊपर पानी आया कहाँ से, हम साइंस पढ़ रहे हैं। व्हाट इज साइंस? साइंस इज एक्सपेरिमेंट, है ही ये चीज ना कि आप यहाँ पे बैठे हैं फिर भी आपके बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं लेकिन समंदर में जो इतना ढेर सारा अल्लाह ताला ने पानी दिया हुआ वो एवोपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। आप सी साइड पे जाइए, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वहाँ पे क्लाउडी दिख रहा होता है, दूर तक देख रहे होते हैं, वहाँ देखो कितना क्लाउड है, बादल कितने नीचे आए हुए हैं। We see this type of words ना, हम मतलब कि इस तरह की चीजें देख के ऐसे बोलते हैं, बादल देखो वहाँ कितने नीचे आए हुए। बेसिकली वो हीटिंग का और एवोपोरेशन का प्रोसेस होता है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, अभी घर में बाउल लीजिए और उस बाउल को धूप में रख दीजिए। एक बाउल में पानी लीजिए, उसे फ्रीजर में रख दें, पॉइंट लगाइएगा, थोड़ी देर के बाद जब कोई 5-6 आवर्स के पास आप जाएंगे, एक फ्रीज हो जाएगा फ्रीजर में, और दूसरा पानी जो है जो आपने धूप में रखा हुआ है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। उसकी क्वांटिटी कम कैसे हो? उसकी क्वांटिटी कम ऐसे हुई कि वहां एवोपोरेशन का प्रोसेस था, हीट हो रही है, पानी एवोपोरेट हो रहा है, आबी बुखारक बन के हवा में मुंतकिल हो रहा है, गैसेस बन रहा है, राइट? See the next slide. To find out more on condensation, fill a glass of water ice cold, leaves the glass on the bottom। जी, ये भी एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी डालिए, फ्रिज से पानी लीजिए, उसे टेबल पे रख दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे उस ग्लास के ऊपर आपको क्या दिखेगा? कंडेंसेशन दिखेगा। जो एक्सपेरिमेंट ग्लास का किया था ना हमने विंडो का, वही है, सबसे बिल्कुल सिंपल है। फिर भी पढ़ देती हूँ। To find out more on condensation, fill a glass of ice cold water, leaves the glass on a table at room temperature. After a few minutes, observe the glass. What do you see on the outer surface of the glass? See the condensation, see the droplets of water. Water के हमें drops दिखेंगे. When the water vapor in the surrounding air comes into contact with the cold outer surface of the glass of water, it loses heat or the glass. The water vapor cools down and change into water droplets. जी देखिए, ये चीज मैंने कितनी अच्छी तरह से आपको बताई है कि किस तरह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगी, और यू कैन सी ऑन द ग्लास। We see these water droplets on the outer surface of the glass. हम इन्हें अपने outer surface of the glass पर देख सकते हैं easily. नेक्स्ट पिक्चर में आई थिंक इसकी पिक्चर भी है, वो भी मैं आपको शो करती हूँ। नहीं, ग्लास वाली पिक्चर तो मैंने नहीं लगाई है, बट ये सॉलिड फॉर्म की है, सॉलिड टू लिक्विड व्हेन वाटर गेन्स। अच्छा, ये देखिए, इस तरह से आप ग्लास रखेंगे भर के, कुछ ही टाइम के बाद आप देखेंगे इस पे यहाँ पर ड्रॉपलेट्स हो, कंडेंसेशन हो, दैट यू कैन सी इजीली, आप उसको बहुत आसानी से देख सकते हो। द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू, इफ यू लीव ऑन आइस क्यूब आउटसाइड द फ्रीज, इट चेंज फॉर्म ऑफ सॉलिड आइस लिक्विड। अच्छा जी, अब ये हमें कहते हैं, बताते हैं कि आप आइस क्यूब्स को फ्रिज से, फ्रीजर से बाहर निकाल के रखिए, कुछ देर में देखेंगे वो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब अगर जब वो सॉलिड फॉर्म में था तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब वो नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। अब आप उसे तीसरा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, या तो उसे जाके बाहर धूप में रख दीजिए या उसे चूल्हे पे बॉईल कीजिए,
स्टोव पे, तो आप देखेंगे कुछ ही देर में वो खत्म हो जाएगा, वो एवोपोरेट्स बन जाएगा। When its temperature increases to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, it start to melt. जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, आ जाता है, तो देन इट स्टार्ट टू मेल्टिंग, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट्स इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। इसको इस प्रोसेस को जब ये मेल्ट हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। आइस है, फ्रिज से निकाली, फ्रीजर से टेबल पे रख दिया, फ्रीज फॉर्म में है, अब वो मेल्ट होना शुरू हुई हो रही है, इसका टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? इट्स मेल्टिंग पॉइंट, 0 डिग्री से अप होना शुरू हो रहा है, इसे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, डिफरेंट सॉलिड्स के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। जरूरी नहीं है कि दूध जो हमने फ्रिज में फ्रीज होने के लिए रखा हुआ था, देचकी में या बाउल में, वो पड़ा हुआ है और आइस है, तो वो सेम एक ही टाइम पर मेल्ट हो जाए। आप एक कप में आइसक्रीम रखिए, फ्रीज करें, एक में सिंपल पानी रखिए, एक में चाय रख लीजिए, एक में दूध रख लीजिए। अब चारों का एक्सपेरिमेंट करें, पहले चारों को फ्रीज कीजिए, फिर चारों को निकाल के बाहर टेबल पे रखिए, देखिएगा कि कौन जल्दी मेल्ट होता है, क्या चीज जल्दी मेल्ट होगी। एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ क्या चेंजेस थे जी। Does the temperature of solid change when it's melting? Does the temperature of solid change when it's melting? Obviously, 100%. जब टेम्परेचर सॉलिड से चेंज हो रहा है, तो क्या वो मेल्टिंग पर आके उसका टेम्परेचर चेंज होता है? यस, होता है। बॉइलिंग पे भी चेंज होता है, मेल्ट पर भी चेंज होता है। बर्फ, आइस मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब वाटर लिक्विड फ्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। At the melting point, the heat added is used to break the attractive intermolecular forces of the solid instead of increasing kinetic energy, and therefore the temperature remains constant. यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी का जिक्र किया है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट्स योर टास्क, ये आपका टास्क है। आप मुझे बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। The melting point of ice is 0 degree centigrade. The melting ice remains at the temperature until all of the ice has melted. Do you notice the melting point of ice is the same as the freezing point of water? आपने नोटिस किया है कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंस है या सेम है? ये सारी की सारी क्वेश्चनिंग जो मैं अभी आपसे कर रही हूँ, ये सारा एक्सप्लेन्ड है और है वही बात। सॉलिड हैज 3 स्टेट, मैटर हैज 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 0, 100, नॉर्मल, कंडेंसेशन, where you can see form of water vapor, everything, just enough. ये है, इसके अलावा नथिंग न्यू, जस्ट एक्सपेरिमेंट्स। दीज आर एक्सपेरिमेंट्स, इन्हें हमने एक्सपेरिमेंट्स करना। एक्सपेरिमेंट्स डेफिनेटली एवरीवन, हर एक करेगा एट योर होम। काइनेटिक एनर्जी का आप मुझे बताएंगे, बिकॉज आई सॉ ही मोशन से पैदा है। वो एनर्जी है जो अपनी मोशन की वजह से क्रिएट होती है, पैदा होती है। इसकी रफ्तार के दौरान इस एनर्जी को गेन करने के लिए, हासिल करने के लिए बॉडी में या ऑब्जेक्ट में मोशन होना, मूवमेंट होना, और उस मूवमेंट को, उस मोशन को कंटिन्यू रखना ज़रूरी होता है जब तक उसकी जो है मोशन जो है वो तब्दील ना हो जाए। ये होती है काइनेटिक एनर्जी। एंड इन द प्रोसेस ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, काइनेटिक एनर्जी काम करती है। क्योंकि हम सिर्फ उठा के रख देते हैं, फ्रीज होता है, हम बाहर निकालते हैं, मेल्ट होता है, हम हीट पे रख देते हैं तो वो एवोपोरेट होके गैस बन जाता है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी। ओके, इट्स वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट।
बॉइलिंग क्या चीज है? जब ऑब्वियसली आप 3 स्टेट ऑफ मैटर्स में लिक्विड को बॉईल करेंगे, वाटर को बॉईल करेंगे, तो इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा। और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तो इट्स अ फॉर्म ऑफ गैसेस, तो गैसेस की फॉर्म में आ जाएगा। आप जस्ट फील करें, एक्सपेरिमेंट करें घर में कि अभी एक देचकी में अम्मी से कहें, अम्मा से कहें कि पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए, चढ़ा दीजिए, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपको किचन में गैस फील होगी, वहाँ यू फील डिफिकल्ट टू ब्रीथ, आपको वहाँ सांस लेने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा। सर्दी में वही चीज आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर बहुत फ्रीज है ना, टेम्परेचर लो में है। अब जब टेम्परेचर ऑलरेडी यहाँ पर 40 डिग्री 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और ऐसे में आप चूल्हा बनाएंगे, गैसेस का एवोपोरेशन का प्रोसेस होगा, तो ऑब्वियसली गर्मी फील होगी। When water is heated to a temperature of 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हम वाटर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है। Many bubbles from throughout the water, these bubbles contain water in the gaseous state। जी बिल्कुल gaseous state में होते हैं। They are formed when the liquid water gain heat and change into gas। ये प्रोसेस होता है, ये वो टाइम होता है जब वाटर जो है वो गैस में चेंज हो रहा होता है। एज द वाटर बॉइल्स द बबल्स रेज एंड escape from the liquid water into the air ground it। बिल्कुल easiest word में easy तरीके से समझिए, कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी आपकी डेफिनेशन निकाली, एक्सप्लेनेशन निकाली है, लेकिन आप 3 स्टेट ऑफ मैटर्स को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, समझें, जो मैंने easiest वे आपको बताया है। Solid, ice, liquid, water, gas, evaporation। You can feel, आप गैस फॉर्म में फील कर सकते हैं, बबल्स बनते देख सकते हैं इन्वायरमेंट में। मैं तो देख रही हूँ, बिकॉज अगर पानी को चूल्हे पे गर्म चढ़ाएंगे, यू कैन सी द बबल्स निकल रहे हैं और आप फील कर सकते हैं। इसकी दूसरी जो एवोपोरेशन की फॉर्म है, सी साइड पे जाइए, देन यू सी द क्लाउड्स, मूंगफली के बादल, कितने बादल हो रहे हैं वहाँ पे, लास्ट पे बादल बादल हो रहे हैं, इस तरह से। ये था आज का टॉपिक। इसमें कंडेंसेशन जो था वो न्यू था। कंडेंसेशन को आप अपने ग्लास पर देख सकते हैं, विंडो पर देख सकते हैं इजीली। अभी सीजन शुरू होगा और 2 महीने बाद आप देखिएगा कंडेंसेशन में आपको करके दिखाऊंगी, हम खुद देख लेंगे। या फ्रिज से पानी निकाल के, बाउल निकाल के, पानी वाटर बॉटल बाहर रखिए, उसमें भी आप कंडेंसेशन आराम से देखिए। दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड, लिक्विड, गैस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 0 डिग्री और 100 डिग्री। हम यहाँ से बैक करते जाते हैं। कोई ऐसी चीज हो जिसे दोबारा एक्सप्लेन करना हो। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू क्रिएट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। ये देखिए, मेल्टिंग 0, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन को आप यहाँ भी देख सकते हैं। ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, ड्यू ड्रॉप्स, शबनम जिसे कहते हैं, ड्यू ड्रॉप्स, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बहुत इजी है। फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में हम इसे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग तो बहुत इजी है, यू कैन सी। यस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। Water exists in 3 states. Water exists in 3 states: solid, liquid, gas. Solid, snow or white, snow or ice. Liquid, water. Gas, evaporates, steam. Changes state of matter, देखिए चेंज हो रहा है। Solid है, here solid, liquid and ये gas. Simple. Right? अब हम स्टॉप शेयरिंग करते हैं। कम ऑन स्क्रीन एवरीवन। जी, Sheryar, where are you? I want to see you. Sheryar, where are you, dear darling? Come on. I'm waiting. Yes, I start from Savera. Savera? Yes. Yes, good girl. Yes, Savera. Give the answer. Sheryar, आप जरा म्यूट हो जाइए बेटा प्लीज। What is important in the topic, in the chapter today? क्या important? Teachers में ये important था कुछ।
सॉलिड लिक्विड में चेंज होके वाटर वेपर बन जाता है और वाटर वेपर बन के क्लाउड्स में चले जाता है। गुड, अच्छा बता रही हैं। और हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर? सॉलिड, हाउ मेनी स्टेट लिक्विड ऑफ वाटर? एंड गैस। एंड हाउ मेनी स्टेट ऑफ वाटर? वन कंडेंसेशन। वाटर की कितनी स्टेट्स हैं? वाटर की टीचर 3। हाँ, वेरी गुड। कौन सी? How many state of water? 3 is solid, ice, liquid, water, gas, steam, evaporation. Good, good girl. Okay, now put up your mic. अपना mic off कीजिए सवेरा. दुनिया, अनुषा या दुनिया? What's your name? Smart girl. अंशरा। Anshra, yes, Anshra. Anshra, now do the experiment. Simple experiment करके मुझे explain कीजिए. 3 states of matter, water. टीचर हम एक बाउल में फ्रीज कर देंगे और इसके बाद हम उसे टेबल पे रख देंगे जैसे कि हाफ एन डेयर, और फिर जब हम इसे देखेंगे तो वो पूरा मेल्ट हो चुका होगा, वो सॉलिड से लिक्विड बन चुका होगा। वेरी गुड। अच्छा, कंडेंसेशन का कौन बताएगा? व्हाट इज कंडेंसेशन और कहाँ देखेंगे? क्या हो गया? अंशा, आप ही बताइए कंडेंसेशन का। यार अपना माइक ऑफ कीजिए। जैसे हमने गिलास में ठंडा पानी डालेंगे तो फिर वो कंडेंसेशन हो जाएगा, जैसे उसमें से बाहर से डॉट्स हो जाएंगे, डॉट्स टीचर नजर आएंगे। सॉरी, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बताइए। और गैस जो है वो वाटर में तब्दील हो जाएगा और उसमें हमें डॉट्स ऑफ वाटर दिखेंगे। वहां दिखेगा। यस। अच्छा, आप शायद सही बता रहे हो, मैं सही स्प्रेड नहीं कर पाई। ओके ओके ओके। अच्छा, और क्या पढ़ा है हमने? वाटर जब बॉईल होता है तो उसका टेम्परेचर कहाँ पहुंच जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर टेम्परेचर बताइए। 0। बॉइलिंग पॉइंट। 100 बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट। 0। फ्रीजिंग पॉइंट 0। Yes, good, excellent. Now you have any question? You want to ask any question? आप लोगों ने कोई question पूछना है? No teacher. Explain each and everything. Clear? Yes. Clear है? अच्छा, आइसबर्ग का तो बताया नहीं आपने मुझे। आइसबर्ग कहाँ होता है, कैसे देखा? आइसबर्ग मरी में होता है। मरी, चले मरी आइसबर्ग देखने। अच्छा, अच्छा, कंफ्यूजन हो, यू कैन टेक्स्ट मी, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ होमवर्क शेयर करती हूँ। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।